Hello everyone, this is Disha welcoming you to this Chance Edutech. Today I am going to take English from First Flight book and the topic is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So this is part 3 of the lesson. So I welcome you once again. So we saw in the last part, in part 2, that how Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president, and after that the swearing in ceremony of Nelson Mandela, the first black president of South Africa, took place, and after that he also spoke to the people on that occasion, and he just gave his emotions. He showed his emotions towards the freedom of the countrymen, towards the people, and how they had struggled during the system of apartheid. And he also justified that it was a victory for peace, justice, and it was the victory of the people. And the people were now in liberty. All the bondage of freedom were removed, bondage of slavery were removed from the nation. So he talked about all those things and how he proceeds in his emotions in this autobiography. Let's see in the next slides. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. कह रहे हैं वो जो दिन आया था लिबर्टी और फ्रीडम का, and they had come out from the bondage of slavery and how they were oppressed by the white skinned people, and now the people are living in liberty. It was a victory of freedom and justice, and it was a victory of democracy. So he has spoken all these topics in the last lesson we saw, and here he just tells about his feelings. He puts his feelings before the countrymen that day, that freedom, that democracy has come about because of the unimaginable sacrifices of his people. मैंने बहुत लोग जो है सैक्रिफाइस किए, अपना जान न्यौछावर कर दिए देश के लिए, इनके साथ रहकर वो लोग काम किए. पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड. जो लोग इतना सफर किए और इतना दुख झेले, व्हाइट स्किन पीपल जो अत्याचार किए, उनका दुख झेले, वो काउंट नहीं किया जा सकता है और उनको रिपे भी नहीं किया जा सकता है. वो बस उनका डेप्ट रह गया है, उनका एक कर्ज रह गया है इन पर. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. और ये कहना चाह रहे हैं अपने लोगों से कि अपना इमोशंस का प्रस्तुत कर रहे हैं कि वह दिन उनको कैसा लगा. As I have on so many other days, बहुत सारे दिनों में भी ऐसे इनको लगा कि आज जो फ्रीडम मिली है अफ्रीका को, उन लोगों का ही सैक्रिफाइस के बदौलत मिली है. उन सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स जो देशभक्त हैं, उनके ही न्यौछावर का, उनके ही संघर्ष का ही नतीजा है, जिन्होंने कितने लोगों ने अपने जान गंवा दिए इस साउथ अफ्रीकन मिट्टी पर इस आजादी के लिए. तो कहते आज जो मैं हूं यहां आपके सामने खड़ा, और जो आजादी आपको मिली है ये सिर्फ मेरी देन नहीं है, मैं बस उसका अंश हूं. वो सब तो उनके जो साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, उन लोगों ने इतना संघर्ष किया, इनके साथी लोग, कि उसी का नतीजा है कि आज ये अच्छा दिन देखने को मिल रहा है. That long and noble line ended and now began again with me.
वो जो लंबा एक समय चला वो खत्म हो गया है। एंड नाउ अभी जो समय अच्छा समय आया है इनके साथ ही शुरू हो रहा है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. और इनको बहुत ही दर्द महसूस होता है कि ये बिल्कुल उनको धन्यवाद नहीं दे पाए, उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे पाए, उन लोगों को अपना आभार प्रकट नहीं कर पाए जिन लोगों ने अपना जान न्यौछावर कर दिया इस धरती पर इस आजादी के लिए। क्योंकि अब वो लोग जीवित नहीं हैं, वो अपना जान की बाजी लगाकर मर मिटे हैं इस देश के लिए। तो इनको बहुत दुख होता है कि काश वे लोग भी शामिल रहते आज के दिन में। आज का जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, जिस उपलक्ष्य में ये इनॉग्रेशन सेरेमनी जो हेल्ड किया जा रहा है, आई मीन ऑर्गेनाइज किया गया है, तो अगर वे लोग अगर जीवित होते तो मैं उनके सामने अपना आभार प्रकट कर पाता कि सब उन्हीं का देन है, उन्हीं के कुर्बानियों के कारण आज ये दिन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. ये जो apartheid का जो सिस्टम था, पॉलिसी था, ये इनके लोगों के ऊपर बहुत बुरा असर किया। साउथ अफ्रीकन पीपल जो थे, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे इस लैंड के, उन पर एक गहरा प्रभाव डाला। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. और कह रहे हैं हम लोग कई सालों तक उस दिन के बारे में नहीं भूल सकते हैं, कई जनरेशंस तक, कई पीढ़ियों तक वो जो दर्द, जो तकलीफ व्हाइट्स ने दिया उस एपार्थाइड सिस्टम के बदौलत, उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और काफी समय लग जाएगा उस हर्ट को हील करने में। वो जो इतना गहरा घाव दिए हैं वे लोग एपार्थाइड सिस्टम के थ्रू से, और 300 सालों तक लोगों को प्रताड़ित होना पड़ा, उसको हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। धीरे धीरे समय लगेगा भूलने में। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobuquets of our time, men of such extraordinary. तो यही कारण है कि इतने सारे दशकों तक जो ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी से लोग परेशान रहे, व्हाइट स्किन पीपल के अत्याचार और ब्रूटैलिटी से जो लोग परेशान रहे, एक अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ एंड इट प्रोड्यूस, जिसके कारण बहुत बड़े बड़े नेताओं का जन्म हुआ, जैसे ओलिवर टैम्बोस है, वाल्टर सिसुलुस, चीफ लुथुलियस, यूसुफ डैडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सबुकेस। इन सब महान नेताओं का जन्म हुआ जो कि इस आजादी के पात्र बने थे। ये जो फ्रीडम मिला है उसके ये हिस्सा बने हैं। नो डाउट ये लोग आज नहीं हैं, लेकिन इन सब का भी देन है। तो ये दे वर men of extraordinary courage and valor. Next. So they were the men of extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. तो ये जो लोग हैं, ये जो 6 लोगों के बारे में चर्चा किया है इन्होंने इस स्लाइड में, इन लोगों का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम और जनरसिटी को ये लोग कभी भूल नहीं सकते हैं, साउथ अफ्रीका के लोग, क्योंकि इन्हीं का देन है कि आज उन्हें आजादी मिली है। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. और कहने का तात्पर्य यह है कि एक डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मतलब बहुत ही गहरा अत्याचार की जरूरत होती है ऐसा हाइट्स ऑफ कैरेक्टर पाने के लिए, ऐसे
हाई कैरेक्टर लोग हैं जो कि बहुत ही ऑपरेशन, बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन ये सब अपने ऊपर झेले हैं और जिसका नतीजा है कि आजादी मिली है। तो पीपल ऑफ हाई कैरेक्टर, दे आर द पीपल ऑफ हाई कैरेक्टर। My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. इनका कहना है कि इनका देश मिनरल्स में और जेम्स में, मिनरल रिसोर्सेस में काफी धनी है। इट्स वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेस विच लाइज बिलो द सॉइल। लेकिन इन्होंने हमेशा अपना ग्रेटेस्ट वेल्थ अपने लोगों को समझा, अपना कंट्रीमैन को समझा। फाइनर एंड ट्रूअर देन प्योरेस्ट डायमंड्स, प्योरेस्ट जो डायमंड्स होते हैं उससे भी ज्यादा, उससे बल्कि उसको तुलना नहीं किया जा सकता है लोगों से। लोग, मनुष्य जो है, इनके देश के जो कंट्रीमैन है, उन लोगों को उन्होंने पहला प्राथमिकता दिया, प्योरेस्ट डायमंड्स को नहीं। डायमंड्स और मिनरल रिसोर्सेस की इन्होंने प्राथमिकता नहीं दिया। इनका लिए सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है? इनके लोग, इनके देश के लोग। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और यही सब कॉमरेड्स थे, ये 6 और भी होंगे, लेकिन ये 6 का चर्चा किया गया है। ये सब कॉमरेड्स से ही इन्होंने संघर्ष सीखा और करेज का मतलब सीखा। करेज का एक्चुअली क्या मतलब, क्या मीनिंग होता है। करेज का बहुत मीनिंग जो होता है, बहुत डीप मीनिंग होता है। और यही कॉमरेड से इस संघर्ष में ये करेज का मतलब को समझा। करेज क्या होता है? टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। और बारंबार, बहुत बार इन्होंने अनेकों बार देखा है कि मर्द और औरतें अपना जीवन को जोखिम में डाल देते हैं कोई एक कॉज के लिए। जैसे आजादी एक कॉज है, आजादी के लिए। तो इन्होंने अपने लाइफ टाइम में ऐसे लोगों को भी देखा है, ऐसे औरतों और ऐसे मर्दों को भी देखा है जो कि अपना जिंदगी को एक रिस्क पर डाल देते हैं। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। और इन्होंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो लोग, जिन लोगों के ऊपर इतना अत्याचार, इतना अटैक, आक्रमण, टॉर्चर, इतना सारा चीज हुआ है, वो बिना टूटे वो बस स्थिर रहे हैं। वे सारे अत्याचारों को झेले हैं। शोइंग अ स्ट्रेंथ, अपना करेज को दिखाए हैं, स्ट्रेंथ को दिखाए हैं, और जो कि ऐसा कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। उनके इमेजिनेशंस को कोई ठेस नहीं पहुंचा। वो जो मन में सोच लाए थे वो लोग कि आजादी पाना है, बस आजादी पाना है, भले कुछ भी हो जाए, टॉर्चर हो, एक्सप्लॉयटेशन हो, अटैक्स हो, जो भी हो। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। और इन्होंने ये भी सीखा कि करेज जो होता है ये एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है। करेज वो नहीं है जिसमें डर ना हो, साहस वो नहीं है जिसमें डर ना हो, बल्कि साहस वो है जो कि भय पर कब्जा कर सके, भय पर विक्ट्री कर सके, फियर के ऊपर विक्ट्री कर पाए। करेज इज अ विक्ट्री ओवर फियर, इनका कहना है। वही उसी को करेज कहते हैं। ऐसा नहीं कि डर खत्म हो गया, वो करेज नहीं है, बल्कि डर के ऊपर काबू पा लेना, उस पर जीत जाना, वही करेज होता है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear। brave man उसको नहीं कहा जाता है who does not feel afraid। brave man उसको नहीं कह सकते हैं जिसको डर नहीं होता है। brave men भी डरते हैं। जो साहसी लोग होते हैं, करेजियस लोग होते हैं, उनको भी डर रहता है, तो उनको ब्रेव नहीं कहा जा सकता है कि उनका डर ना हो। बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, उसे कहा गया है जो कि डर पर कब्जा पा सके। द ब्रेव मैन इज हु कैप्टिवेट्स फियर, हु कॉन्कर्स फियर, हु ट्रायम्फ्स ओवर फियर, हु सोज हिज विक्ट्री ओवर फियर।
he is called a brave man. Next. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. किसी का कोई जन्म से नफरत नहीं करता दूसरे व्यक्ति से। जन्म से किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म से वो नफरत नहीं सीखता है, वो तो जन्म होने का बाद सीखता है कि कोई भी नफरत करे किसी का स्किन का कलर का वजह से या उसके बैकग्राउंड या रिलीजन को लेकर कोई नफरत करे। ऐसा किसी का जन्म नहीं हुआ कि जन्म से ही ऐसा हो। किसी में नफरत, कोई नफरत का पात्र बन जाता है या नफरत करता है कुछ दूसरे कारण की वजह से। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. इनका कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, और अगर वो नफरत करना सीख जाते हैं तो उनको लव करने को सिखाया जा सकता है। लव एंड अफेक्शन वाली बात उनको सिखाई जा सकती है, क्योंकि लव जो आता है ये बिल्कुल स्वाभाविक रूप से आता है, नेचुरली आता है। ह्यूमन हार्ट में लव जो होता है नेचुरल फीलिंग होता है, ये नेचुरली आता है लोगों में। देन इट्स अपोजिट। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. और ऐसे ग्रिम सिचुएशन आया था, ऐसा एक बहुत ही डार्क सिचुएशन, ग्रिम सिचुएशन, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आया था जब ये प्रिजन में थे, जब इनके कॉमरेड्स और इनको एक लिमिट्स में पुश कर दिया था। व्हाइट पीपल ने एक लिमिट में रहने को मजबूर कर दिया था, तो इन्होंने एक ह्यूमैनिटी का एक झलक देखा। ही सॉ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, एक झलक देखा ह्यूमैनिटी का, एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा एक गार्ड्स में, वन ऑफ द गार्ड्स, जो गार्ड्स थे प्रिजन से बाहर, प्रिजन में जो गार्ड्स थे उसमें से एक गार्ड्स में उन्होंने देखा ह्यूमैनिटी, मानवता देखा। एक सेकंड के लिए देखा, लेकिन देखा इन्होंने कि एक गार्ड में भी ह्यूमैनिटी था, मानवता था। बट इट वाज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और इससे इनको बहुत रीअश्योरेंस मिल गया, इनको बहुत शांति मिला, बहुत ही सेटिस्फाइड हुए, कंटेंटमेंट मिला जब इन्होंने देखा कि एक गार्ड के मन में एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए ह्यूमैनिटी जग गया है, मानवता जग गया है। तो ये बहुत खुश हुए और वही बात को दिल में दबाए हुए आगे बढ़े। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. आदमी की जो अच्छाई होती है एक फ्लेम की भांति होती है, जो कि छिपा हुआ रह सकता है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मानव का जो अच्छाई है छिपा रह सकता है, बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। उस अच्छाई को हटाया नहीं जा सकता है, उसको बुझाया नहीं जा सकता है, यही इनका कथन है। क्योंकि उस गार्ड में इन्होंने देखा था कि एक सेकंड के लिए ही अच्छाई दिखाया, उसने ह्यूमैनिटी को प्रस्तुत किया। तो इसी बात पर वो कहते हैं कि मनुष्य का जो अच्छाई एक फ्लेम का जैसे है, जो कि हिडन रह सकता है, भले दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसको बुझाया नहीं जा सकता है, इसको हटाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। जहां कर्तव्य की बात है, जीवन में हर मनुष्य के दो कर्तव्य होते हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस। ट्विन मीन्स टू। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला ऑब्लिगेशन क्या होता है? अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरा ऑब्लिगेशन क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है लोगों का, किसी भी व्यक्ति का? पहला तो होता है परिवार के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। और दूसरा ऑब्लिगेशन जो होता है, कर्तव्य होता है लोगों का, किसी भी व्यक्ति का, अपने लोगों के प्रति, जो देश में लोग रहते हैं, उसके समुदाय के प्रति और उसके देश के प्रति। ये सेकंड ऑब्लिगेशन है जो कि इन्होंने यहां डिस्क्राइब किया है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में प्रत्येक आदमी
इन सब ऑब्लिगेशन को अपने नजरिए से, अपने तरीके से, अपने क्षमता से इस ऑब्लिगेशन को पूरा करता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations। और ये पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये बिल्कुल एक इम्पॉसिबल वाली बात थी, जो कि कोई भी मनुष्य जो इनके समय का हो, इनका जो साथी हो, इनके कलर का हो, जो कि ये ऑब्लिगेशन पूरा कर पाया हो। ये दोनों ऑब्लिगेशन का जो चर्चा की है, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द फैमिली एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द पीपल एंड कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। ये ऑब्लिगेशन पूरा करना बहुत मुश्किल था, फुलफिल करना बहुत मुश्किल था। जो समय ये झेले हैं, जिस सिचुएशन से ये गुजरे हैं, उस सिचुएशन में ये दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल रहा। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। दक्षिण अफ्रीका में एक कलर वाला व्यक्ति था, मीन्स ब्लैक। कोई भी व्यक्ति अगर कलर मीन्स ब्लैक कलर का हो और जो अपने जो ह्यूमन बीइंग के जैसा रहना चाहे, जो ह्यूमन बीइंग जैसा रहने का कोशिश किया करता था, उसको पनिश किया जाता, उसको सिवियरली बहुत कड़ा से कड़ा दंड दिया जाता था। कौन देता था? व्हाइट पीपल, बिकॉज व्हाइट सुप्रीमेसी का राज था और उसको अकेला छोड़ दिया जाता था, वहां से आइसोलेट किया जाता था। That person was isolated from his family, from his community। उसको निकाल दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। और साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो अपने कर्तव्य निष्ठा दिखाना चाहता था, उस व्यक्ति अपने लोगों के प्रति या अपने परिवार के प्रति, उस व्यक्ति को अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था, उस समाज से उसको निकाल दिया जाता था और उसे एक ऐसी जिंदगी जीने पर विवश कर दिया जाता था जहां वो एकदम एक रिबेलियन वाली जिंदगी जीता था, सिक्रेसी में। वो कहां रहता है, किसी परिवार, उसके परिवार के लोगों को नहीं पता था किस प्रकार उसको रखा गया है, जेल में या जहां भी व्हाइट पीपल का सुप्रीमेसी था, तो व्हाइट्स लोग कहां रखते थे ये भी उनके परिवार वालों को पता नहीं चलता था। तो एक अलग प्रकार की जिंदगी उनको जीना पड़ता था, जो अपने परिवार के प्रति वफादारी या अपना कर्तव्य निष्ठा को दिखाना चाहता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, a brother, a father and a husband। और ये कह रहे हैं शुरुआत में इन्होंने इन द बिगिनिंग ही डिड नॉट चूज टू प्लेस माई पीपल, अपने लोगों को परिवार के ऊपर दर्जा नहीं दे पाए, परिवार से ज्यादा महत्व नहीं दे पाए अपने लोगों को शुरुआत में, और अपने लोगों को, अपने कंट्रीमैन को का सेवा करने के चक्कर में क्या देखा इन्होंने, जब कोशिश किया अपने देश के लोगों का सेवा करे, तो he found that he was prevented from fulfilling his obligations। उसको रोका जा रहा था, व्हाइट्स लोग उसको रोक रहे थे, उनके वो जो ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना चाहते थे, जो अपना कर्तव्य निष्ठा वाली बात आई है, अपने कर्तव्यों को फुलफिल करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए। एज ए सन, एज ए ब्रदर, अ फादर एंड हस्बैंड, किसी भी रूप में उन्होंने अपना कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाया, क्योंकि वो व्हाइट स्किन पीपल उनके रास्ते में रुकावट बन गए, उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिए, उनको जेल में डाल दिए, उनको कारागार में डाल दिए। नेक्स्ट, I was not born with a hunger to be free। इनका जन्म ऐसा नहीं हुआ था जैसे उन्हें फ्रीडम की भूख हो, ऐसा उनका जन्म नहीं हुआ था। I was born free, उनका कथन है कि मैं फ्री, साउथ अफ्रीका में जन्म हुआ था इनका, फ्रीली जन्म हुआ था, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। इनका कथन है कि जब इनका जन्म हुआ था, जब बड़े हुए,
तो इनको लगा कि ये बिल्कुल फ्री है, ही इज फ्री इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माय मदर्स हट। इनको पूरा आजादी था, अपने माँ के जो झोपड़ा था, हट था, उसके नजदीक में दौड़ने का इनका फ्रीडम था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माय विलेज, उनके गांव में जो नदी बह रहा था वहां भी उसमें स्विम करने का, उसमें तैरने का इनको फ्रीडम था, ये सोच रहे थे। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और वो खाना पकाने का भी उनको अधिकार था स्टार्स के रात में, स्टार्स के नीचे, और राइड द बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, स्लो मूविंग जो बुल्स थे उसके पीठ पर सवार होकर घूमने का अधिकार था। इनका ये सोच था जब इनका जन्म हुआ था। जब बड़े हुए, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक ये अपने पिता के बातों को मानते रहे, पिता के आज्ञा को मानते रहे, और उनका जो ट्राइब था, इनके ट्राइब का जो कस्टम्स था, रूल्स एंड रेगुलेशंस था, उसको मानते रहे, इनको कोई भी दुख नहीं हुआ, इनको कोई भी प्रताड़ित नहीं किया, न तो लॉज ऑफ मैन और न ही भगवान, न ईश्वर से परेशान हुए, न तो ईश्वर के कानून से परेशान हुए, न तो ये जो लोगों के कानून जो बनाए हुए थे अपार्थिड, उससे परेशान नहीं हुआ, इनको किसी चीज से परेशान नहीं हुआ। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ये कब मालूम हुआ कि इनको इनके फ्रीडम को रोका जा रहा है, जब उन्होंने सीखना शुरू किए। It was only when I began to learn that my boyhood freedom, इनको जब उस समय पता चला, जब उनका बॉयहुड फ्रीडम, जब जवान हुए, जब तो देखे कि इनका जो फ्रीडम है एक इल्यूजन रह गया है, एक बस इल्यूजन बन के रह गया है, कि इमेजिनेशन बन के रह गया है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब यंग हुए, when he became young, he came to know that his freedom was taken away from him, his freedom was curtailed, that I began to hunger for it, और उसके लिए वो प्यासे हो गए, फ्रीडम के प्यासे हो गए, भूखे हो गए। At first as a student I wanted freedom only for myself. जब एक स्टूडेंट थे, एक छात्र थे, तो फ्रीडम अपने लिए चाहते थे, सिर्फ अपने लिए। The transitory freedoms of being able to stay out at night, जैसे रात में एक ट्रांजिटरी फ्रीडम होता है जो कि रात में कहीं भी घूम सकते हैं, इस प्रकार के फ्रीडम वो चाहते थे। Read what I pleased and go where I chose, जो मन करे वो पढ़ सकते थे, ऐसा फ्रीडम उन्हें चाहिए था। कब? जब वो स्टूडेंट थे, when he was a student, और उनको जहां मन करे वहां जा सके, जो किताब मन करे पढ़ सके, जो चीज मन करे वो पढ़ सके, जहां मन करे वो पढ़ सके। Later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in lawful life. देखिए यहां पर दिया गया है, बाद में जब he became young, as a young man, जोहानिसबर्ग की बात कर रहे हैं, he yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. वो बस उनके मन में एक लालसा सा रह गया, बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम पाने का। उनके जो एबिलिटी था, अपने एबिलिटी को प्रदर्शन करना चाहते थे। He wanted to earn and he wanted to marry, he wanted to have a family, but his freedom was obstructed in a lawful life. उनका फ्रीडम को में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। His freedom was curtailed by the white skinned people. Next. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन आगे उन्होंने देखा कि सिर्फ यही नहीं थे जो कि इनको फ्रीडम नहीं मिला है, बल्कि इनके भाई और बहन भी they were also not free. उनको भी आजादी नहीं मिली थी, उनको भी राइट्स नहीं मिले थे, अधिकार नहीं मिले थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. सिर्फ इन्होंने देखा कि सिर्फ यही नहीं थे कि इनकी ही फ्रीडम को रोका गया है, इनके फ्रीडम के ऊपर रोक लग गया है, इनके राइट्स अधिकारों के ऊपर रोक लगा है, बल्कि सारे लोगों को, इनके समुदाय के जो भी लोग थे, इनके फ्रीडम के ऊपर भी रोक लग गया था। जिन प्रकार जैसा
इनके ऊपर लगा हुआ था, बाकी लोगों के ऊपर भी रोक लगा दिया था। किसने? इस अपार्थाइड सिस्टम ने, इस व्हाइट स्किन पीपल ने। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। और इसका नतीजा क्या हुआ कि ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए। और कब हुआ? दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम, अपना फ्रीडम पाने के भूख इनको जब लगा, जब तीव्र हुआ, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ पीपल। इनका हंगर से, इनका फ्रीडम से ज्यादा इनके देश का फ्रीडम इनको जब ज्यादा प्यारा हुआ, तब जाकर इनको महसूस हुआ कि इनको फ्रीडम की भूख लगी है। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. देखिए इस लाइन्स को। और यही फ्रीडम की प्रबल इच्छा इनके मन में जग गई, फ्रीडम ऑफ द कंट्रीमैन, देश की आजादी। और यही डिजायर था लोगों की आजादी, कि टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी। ये चाहते थे कि लोग एक रेस्पेक्ट से रहे, सेल्फ रेस्पेक्ट रहे लोगों में, और जिससे कि इनका जिंदगी बदल गया, इनका जिंदगी भी उसी प्रकार बदला। मतलब फ्रीडम का भूख लग गया इनको, और जिससे कि एक फ्राइटेंड यंग मैन के जैसे पले रहते थे, डरे हुए यंग मैन के भांति, ये एक बोल्ड यंग मैन में बदल गए। That drove a law-abiding attorney to become a criminal. एक लॉ के अनुसार, एक कानून के नजर में, कानून को मानने वाले जो अधिकारी थे, इससे एक क्रिमिनल, अपने आप को क्रिमिनल बन गए लोगों की नजर में, देश की नजर में, उस लॉ की नजर में एक क्रिमिनल बन गए। That turned a family-loving husband, एक family-loving husband into a man without home, एक अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे और परिवार के साथ रहना चाहते थे, लेकिन इनको परिवार से वंचित कर दिया गया। ये बिना घर का इनको दूसरे जगह जेल में डाल दिया गया। That forced a life loving man to live like a monk, और जो कि एक मॉन्क के, एक साधु संत के जैसा जेल में अपना जिंदगी बिताने लगे अपने परिवार से दूर। ये सब हुआ लोगों की आजादी के लिए, अपने राइट्स के लिए। ये चाहते थे कि लोगों को आजादी मिले, उनका अधिकार मिले, एक समान अधिकार मिले। नेक्स्ट, I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. ये उतना सा ज्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग और वर्चुअस नहीं थे दूसरे आदमी से, नेक्स्ट मैन जो था, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो अपना पुअर और लिमिटेड फ्रीडम्स जो था वो भी एंजॉय नहीं कर पाते थे। That I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed, जो लिमिटेड फ्रीडम इनको मिला था वो भी एंजॉय नहीं कर पाए। When I knew my people were not free, जब इनको पता चला कि इनके देश के लोगों को आजादी नहीं है मिली है, इनके समुदाय के लोग आजादी से नहीं रहते हैं। I mean the black people, the original inhabitants of the land, they were not living freely। तो ये कहां से सोच सकते थे कि इनको फ्रीडम मिल गया है, या ये कैसे लिमिटेड फ्रीडम में ये कैसे अपनी जिंदगी अच्छा से बिता पाते, ये इनका सोच कथन है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है कि गोरे लोगों को फ्रीडम दे दिया, व्हाइट स्किन पीपल को, ब्लैक लोगों को फ्रीडम ना दिया जाए, ऐसा नहीं है। फ्रीडम तो इंडिविजिबल है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, The chains on all of my people were the chains on me। इनका कहना है जिस बंदिशों से, जो बंदिश, जो लॉज लगाए गए थे इनके पीपल के अगेंस्ट में, वो उनके ऊपर था। जो कहने का मतलब, द चेंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, किसी भी व्यक्ति इनके कोई समुदाय के लोगों के ऊपर अगर कोई बॉन्डेज रहता है, कोई अधिकार छीना जाता है, इसका मतलब सभी का अधिकार छीन लिया गया है। The chains on all my people were the chains on me, सारे लोगों की जो फ्रीडम को छीन लिया गया है, the original inhabitants of साउथ अफ्रीका के लोगों का, इसका मतलब कि इनका भी अधिकार छीन लिया गया है।
उनको अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, मतलब ये समझते थे कि हमको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों 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 क्योंकि ये भी उस समुदाय के हिस्सा थे। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। इनका कथन है कि ऑपरेशर जो अत्याचार करता है उसको भी आजादी मिलना चाहिए। जिस प्रकार के से जिस आदमी पे अत्याचार किया जाता है, जो ऑपरेस्ट, जो अत्याचार सहता है, उसी प्रकार ऑपरेसर आई मीन अत्याचार करने वाले को भी आजाद करना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे एनी अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक आदमी अगर किसी की आजादी को छीन लेता है, ही बिकम्स द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो नफरत का पात्र बन जाता है, वो नफरत का बंदी बन जाता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness। क्योंकि वो आदमी जो दूसरे के ऊपर अत्याचार करता है, नफरत करता है, he is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness। वो narrow-minded, he is not broad-minded, but he shows his narrow-mindedness। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom। इनका कथन है कि मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूं अगर मैं किसी और का फ्रीडम को मैं छीन लेता हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन अप फ्रॉम मी। और जैसे कि उनको पता चलता है, वो महसूस करते हैं कि अगर उनसे उनका फ्रीडम छीन लिया जाता है, नेल्सन मंडेला से उनका फ्रीडम छीन लिया जाता है, तो वो अपने आप को मानते हैं कि वो भी फ्री नहीं है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ऑपरेस्ड जिसपे अत्याचार होता है और जो अत्याचारी है, आई मीन जो अत्याचार करता है, दोनों को ह्यूमैनिटी से निकाल दिया गया। दे आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उनका जो मानवता है, मानवता को छीन लिया जाता है। गवर्नमेंट के बनाए हुए जो गलत रूल्स है, उसके कारण जो ऑपरेसर है वो भी मानवता के बारे में भूल जाता है, और जिस पर अत्याचार होता है वो भी भूल जाता है, वो भी ह्यूमैनिटी के बारे में कुछ नहीं जान सकता है। वो सिर्फ जानता है कि उस पर अत्याचार हो रहा है, और अत्याचारी जो है वो अपना ड्यूटी कर रहा है जिस प्रकार से उसको निर्देश दिया गया है। जैसे द व्हाइट स्किन पीपल वेर ऑपरेसिंग द ब्लैक स्किन पीपल, मीन्स द ब्लैक स्किन पीपल वेर ऑपरेस्ड बाय द व्हाइट स्किन पीपल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस एंड रिलीजन। रेस, रिलीजन, कास्ट, कलर, ये सब बातें थी जो एपार्थाइड सिस्टम जो लागू हुआ था। तो एपार्थाइड सिस्टम का अंत में उसका खात्मा होता है, दैट इज रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी, एंड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका लिव्ड हैप्पीली आफ्टर साउथ अफ्रीकन आफ्टर नेल्सन मंडेला becomes the first black South African president, and he owes to the countrymen that never in his life, never on the South African soil would anybody see the system of apartheid और ऑपरेशन, जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित होना पड़ा था 300 सालों तक, वह दिन कभी नहीं आएंगे। इन्होंने प्रण किया था, प्रतिज्ञा किया था लोगों के सामने अपने संबोधन में, और ये सब जो बातें बताए हैं, ये इन्होंने जिस प्रकार से अपनी जिंदगी को झेला है, संघर्ष किया है, उन सब बातों को बताया है कि किस प्रकार से लोगों का फ्रीडम छीना गया था और क्या क्या सिचुएशंस इनको गुजरना पड़ा, और लोगों का जो तकलीफ वो अपना तकलीफ मानते हैं। कौन? साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। So we have come to the end of this topic, this lesson. So I'll come with my next topic in the next class. Till then, goodbye. Thank you.